The next part, the fourth part, continuation of the lesson, the rat trap. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interested for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Ramsuji passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas feast and for it. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him a understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. The man with the rat trap did not answer anything to this. He only stared at the young girl in the boundless amazement. जुगत ने अजनबी को पकड़ा और उसे मेज के तरफ ले गई। जब अब बैठ जाओ और भोजन करो, उसने कहा, क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता ने जीत छोड़ दी थी। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो केवल बैठ गया और खाने में स्वयं को मदद करने लगा। कुछ देर वो जुगती की तरफ देखता था जिसने उसके पक्ष में मध्यस्थता की थी। उसने ऐसा क्यों किया था? इसके पीछे कैसा सम की विचार हो सकता था? इसके बाद रामसुजो में क्रिसमस उसी प्रकार गुजर गया जैसे हमेशा गुजरता था। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। पूरा तीसरा पहर वो मेहमानों वाले कमरे में सोफे पर खड़ा पड़ा रहा और लगातार सोता रहा। दोपहर के समय उन्होंने उसे जगाया ताकि वो बढ़िया क्रिसमस भोज में से अपना हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद वो सो गया। ऐसा लगता था जैसे अनेक वर्षों से वो इतनी शांति और सुरक्षा से सो नहीं पाया था जितना कि यहाँ रामसुजो में से सो रहा था। शाम को जब क्रिसमस पेड़ की रोशन किया गया तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया और फिर वो कुछ देर तक बैठक के कक्ष में खड़ा रहा, आंखें झपकता हुआ मानो मोमबत्ती की रोशनी से उसे तकलीफ पहुंचा रही थी, तथा उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया, तब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस वाली मछली और दलिया खाना पड़ा। जैसे वे मेज पर से उठे, वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक करके गया और धन्यवाद, अशुभ रात्रि कहा। लेकिन जब वो उस युवती के पास आया तो उस युवती ने यह बात उसे समझा दी कि उसके पिता की इच्छा थी कि वो सूट जो वो पहने हुए था वो उसे एक क्रिसमस उपहार होगा, उसे वह वापस करने की जरूरत नहीं थी।
और यदि वह अगला क्रिसमस त्योहारों ऐसी जगह पर बिताना चाहता हो जहां पर आराम से समय बिता सके तथा यह निश्चित रखे कि उस पर कोई बुराई नहीं आएगी, तो उसका वहां दोबारा स्वागत होगा। इस पर चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह असीम हैरानी से युवती की ओर देखता रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep, and they did not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old proctor of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wondered how many silver spoons are left in the cupboard by this time. The wagon had hardly stopped at the front step when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into the view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. Honored and noble Miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embraced at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bed for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain वॉन स्टैथली। दूसरे दिन सुबह आयरन मास्टर उसकी बेटी सुबह की क्रिसमस पूजा पर पहुंचने के लिए ठीक समय पर उठ गए थे। उनका मेहमान अभी भी सो रहा था और उन्होंने उसकी नींद को भंग नहीं किया। लगभग 10 बजे जब वे गाड़ी में सवार होकर चर्च से आ रहे थे तो युवती निराशा में अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी। चर्च में उसे पता चला कि आयरन वर्क्स का एक पुराना छोटा वर्कर का एक आदमी के द्वारा ठगा गया था, जो चूहेदानी बेचते हुए घुमा करता था। हाँ, वो एक अच्छा आदमी था जिसे हमने घर के अंदर प्रवेश करवा लिया था, उसके पिता ने कहा। मुझे शंका है, पता नहीं अब तक अलमारी में कितने चम्मच बचे होंगे। बग्दी मुश्किल से आगे वाले दरवाजे पर रुकी होगी। क्या आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या वो अजनबी अभी भी वहां पर है। उसने यह भी बता दिया कि उसने चर्च में सुना था कि वो आदमी एक चोर है। नौकर ने जवाब में कहा कि वह आदमी जा चुका है और वह अपने साथ कोई भी चीज लेकर नहीं गया था। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ा था, जिसे मिस वेल्समेंसन ने कृपा पूर्वक एक क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार किया था। युवती ने पैकेट को खोला। पैकेट बहुत बुरी तरह से बंधा हुआ था, लेकिन उसके अंदर का सामान दिखाई पड़ गया। उसकी एक छोटी सी चीख निकल पड़ी। उसमें से एक छोटा सा चूहेदानी मिला।
और उसके अंदर मुड़ी हुए 10-10 के 3 करोड़ नोट थे। लेकिन यह सब पूरा नहीं था। इस चूहेदानी में एक पत्र भी था जो बड़े बड़े और आड़े तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ था, सम्मानियों और सभ्य मिस, क्योंकि आप पूरे दिन भर मेरे प्रति इतनी शालीन नहीं रही है मानो मैं कोई कप्तान था। मैं भी बदले में आपके प्रति श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, मानो मैं सचमुच एक कप्तान ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा परेशानी में पड़े। किंतु आप ये पैसे सड़क किनारे वाले उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा सकती है जिसकी पैसों वाली थैली खिड़की वाले फ्रेम के ऊपर लटकी रहती है, गरीब घूमने वालों को फंसाने के लिए एक प्रलोभन के रूप में। चूहेदानी उस चूहे की तरफ से एक क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है यदि उसकी पदोन्नति एक कप्तान के रूप में नहीं हुई होती, क्योंकि उस ढंग से उसे स्वयं को निर्देश बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। मित्रतापूर्ण और उच्च सम्मान के साथ कप्तान वर्ड वेजल। तो यहीं पे ये लेसन समाप्त होता है स्टूडेंट्स। आगे आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स टू ऑल।